Ma'am, we didn't complete nor is left. Nor is left. Okay. Okay. As in NAND, we know that as in NAND gate, the operation performed is NAND, then NOT. First, we on the inputs we perform the AND operation, and then we take the invert of the outputs. Similarly, in NOR gate, what we do, we apply OR operator. We apply OR operator on the inputs, and then we invert that. Okay, like this. You can see here. This is an OR gate. This is an OR gate. Okay, the output of OR gate will be A plus B, and we will invert it. So the output will be A plus B bar. Basically, in OR gate we get the output as 1 if any of the, just a second. Okay, as you can see in OR gate, we get the, if any of the input is 1, we get the output as 1. But for NOT gate, the output will be opposite. If we'll get the output, if we'll get the output as 0, the output of OR gate, if the output of the OR gate will be 0, then the final output will be 1. So here you can see the truth table. Is it visible? Truth table is visible to you all? Yes, ma'am. Okay, the input is A, B. If the input is 0, we'll get the output as 1. If the input will be 0, 1, we'll get the output as? Ma'am, A plus B will get 1, but A plus B Yes, bar will get 0. will be 0. So we can say that the output of the NOR gate will be opposite of the output of the OR gate. Okay, as you can see in OR gate we get output as 0, 1, 1 and 1 for 2 inputs. If the x is 0, y is 0, we'll get 0. If x is 0, y is 1, we'll get 1. If x is 1, y is 0, we'll get 1. And if both are 1, we'll get 1. Means we will be getting 1 if either of the input is 1, or we can say true. Okay. But here in NOR gate, what happens? The output will be inverted of OR. If either of the input is 1, we'll get 0 in the output. Got it? Yes. So let's move to the next gate, that is XOR gate. XOR gate, basically it is XOR. Okay, it is abbreviated as XOR. The symbol of XOR is plus and a circle around the plus. But the operation that is performed is A B bar. The bar is on the B plus A bar B. Means once we invert B and then we invert A. Then take the AND of A and B bar. Again, we take the AND of A bar B, and then we apply OR operation on these two. Got it? So, if I'll say A is 0 and B is 1, the first we'll calculate A bar and then we'll calculate B bar. Let's draw a full truth table for this. This is A, this is B. Okay, invert of A will be 1, 1, 1, 1, 1, 0. and 0. And invert of B will be 1, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0. Okay, now A, B bar. So we have to apply. Ma'am, like A, B वाले में एक गलती है. Like the third Just a second. row. Sorry.
On 0 the 1 third 0. row. Okay, yes, it will be 1 0. Please listen to me what I'm saying. It can be means small mistakes in writing. Okay, so the output of AB bar will be, what will be the AB Ma'am, bar? 0 And and then 1. A dash so B they will dash be also. A dash and B Sorry. dash also, they will be switch. Yes. Okay. Yes. 0 and 1. Okay. Hmm. So if we'll take A, B bar, what we'll get? It is AND operation between A and B bar. So in AND, if either of the input is 0, we will get the output as 0. 0. Okay. So A is 0 and B bar is 1. So the output will be 0. 0. A and B bar is both are 0. The output will be 0. Both are 1. The output will be 1. A and B bar output will 0. be 0. Is it correct? Yes. Now Yes. this is A bar B. Okay, so A bar B, will take A bar and B as input. So this is also AND, the output will be 0 if either of the 0. input is 0. The first one will be 0. The 1. second one will be 1 because A bar is 1 and B bar is also 1. The third one will be 0 because 0. both are 0, and the last one will be 0. 0. Okay. Now we will perform AND operation in between these two. AB bar, Ma'am, we will perform OR, right? Not or. AND. Firstly, we will perform AND here. In AB bar, we are performing AND. Okay. And now we will perform OR. So now this whole operation is known as XOR. Got it? Yes, ma'am. Just a second, let me complete first, then I'll take the doubts, whatever you are means asking on chat. Okay. So in OR operation, what we do, if either of the input is 1, the output will be 1. Okay. So this is 0, 0 is 0, 0, 1 will be 1, 0, 1 will be 1, and 0, 0 is 0. This is the output of the XOR gate. Is it clear to all? Ma'am, in XOR gate, it is also like if even number of ones and odd number of ones. Yes, for more than one input. Ma'am, yeah. Sorry, for more than two inputs. For Ma'am, more than, for two inputs also, right? well, in two you will get only means output will be like this. There will be only this one. Yeah, this is even number of zeros and even number of ones. So if the number of inputs are, matlab same inputs are even, you will get output as 0. And if the input is odd, you will get the output मैम as कोई वेटिंग रूम है waiting में है. मैम वो बार वाला ऑपरेशन समझा दूंगा. कौन सा बार वाला ऑपरेशन फिर से समझा दूं? Let me clear it all. I'm writing here. You know what is A bar, na? If A will be 0, A bar will be 1. Is it clear to you? Hello? Yes, ma'am. So the thing that I need to that I told you was that if A B bar, अगर ये A B bar है, तो हम क्या करेंगे? एक इनपुट A का लेंगे और दूसरा इनपुट B बार का लेंगे. इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Why are these students joining so late? ऐसे तो फिर मैं एडमिट ही करती रह जाऊंगी. हाँ. So should I draw the truth table again for the whole? Suppose A B है, ये दो मेरा इनपुट है, ठीक है? A 0 है, 0 1, 1 0 and 1 1. तो अगर मैं A का A बार, A का इन्वर्ट क्या होगा? A बार होगा.
ठीक है, तो जो भी आउटपुट्स तुम्हारे ए में है, इनपुट्स तुम्हारे ए में है, इन्वर्ट करेंगे तो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे वो, है ना। तो इफ a is 0 a bar will be 1, if a is 0 a bar will be 1, and if a is 1 a bar will be 0. okay, similarly in b bar उसका इन्वर्ट होगा, b का इन्वर्ट होगा। अगर b 0 है तो b bar 1 होगा, और अगर b 1 है तो b bar 0 होगा। क्लियर है इतना? इसके बाद जो आपका एक्सॉर ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी होता है। ठीक है, तो ए बी बार अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ए और बी बार को में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा। ये ए है और बी बार ये वाला है, लास्ट वाला। तो फर्स्ट और लास्ट को हम कंपेयर करेंगे कि, और इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। और एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 0 है, आइदर ऑफ द इनपुट इज 0, द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ए बी बार में देखते हैं हम, ए 0 बी बार इज 1, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही दोनों 0 है तो भी आउटपुट 0 आएगा, और दोनों 1 है तो आउटपुट विल बी 1, एंड यहाँ पे बी बार इज 0 तो आउटपुट विल बी 0। वैसे ही फिर अब हम यहाँ पे ए बार बी करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनपुट में क्या लेंगे, ए बार एंड बी। अब इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। फिर से यहाँ पे वही होगा, इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट विल बी 0। ए बार 1 0। ठीक है, अब इन दोनों में ए बी बार और ए बार बी में हम और ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो और में क्या होता है, अगर आइदर ऑफ द इनपुट इज 1 हमें आउटपुट में 0 मिलता है। ठीक है, सॉरी 1 मिलता है। दिस इज 1 1 1 0, दिस इज द आउटपुट ऑफ योर एक्सॉर गेट। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर एक्सक्लूसिव और गेट में या और गेट में आउटपुट जो है 1 होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब वंस जो है वो ऑड होते हैं। ठीक है, वंस ऑड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम ए बी को देखेंगे आउटपुट के लिए, वी विल सी द आउटपुट एंड ए बी। यहाँ पे देखो, ट्रुथ टेबल में देखो, यहाँ पे आउटपुट देखो, सिंगल आउटपुट है 1 तो हमें 1 मिल रहा है, सिंगल आउटपुट है 1 तो हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 1 जो है नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो अगर इवन होंगे, सॉरी ऑड होंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर नंबर ऑफ इनपुट वंस जो होंगे वो इवन होंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। क्लियर है? सपोज मेरे पास 3 इनपुट्स होते, तो अगर मेरे पास 3 इनपुट में एक कॉम्बिनेशन होता 0 1 1 का, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलता वो हमें क्या मिलता, 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वंस यहाँ पे क्या है, इवन है, दैट इज 2 वंस। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास इनपुट है 1 0 0 तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे क्या है, ऑड है। क्लियर है ये चीज? एक्सॉर गेट में होता है। हाँ हम ये बस एक्सॉर गेट में होता है। हाँ, ये रूल एक्सॉर गेट में चलता है। ठीक है, सपोज 4 इनपुट्स हैं 1 1 0 0, ये 4 इनपुट्स है मेरे पास, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इसमें क्या है, इवन है। वहीं अगर मुझे 1 0 1 1 इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इसमें क्या है, ऑड है। क्लियर है इतना? यस मैम। It will take a lot of time if I allow you to make the notes in the class only. मैम आपने लास्ट क्लास हम लोग को वो स्पाइडर आईडी डाउनलोड करने को बोला था, पर अगर पाइचार्म यूज करे तो चलेगा ना? बेटा चलेगा तो, बट आपका जो करिकुलम है, जो स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको स्पाइडर आईडी पे ही वर्क करना होगा। द थिंग इज दैट, बाकी आप देखो लैंग्वेज का क्या, आप कोई भी आईडी यूज करो, इट डजंट मैटर्स, क्योंकि काम तो उसमें वही होना है। हाँ तो फिर चलेगा ना पाइचार्म? हाँ, तो पाइथन किसी भी आईडी पे करो, तुम आइडल पे करो, तुम जुपिटर पे करो, तुम स्पाइडर पे करो, किसी पे भी करो, बट एट द एंड ऑफ द डे पाइथन आईडी पे कर लो। पाइथन आईडी पे कर लो, तुम डायरेक्टली ये W3 स्कूल्स पे जाके भी कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी जाके डायरेक्टली पाइथन का उसमें चलता है, आपका प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट मोड में आता है। टेक्स्ट बुक में वो ऑप्शन दे रखा है उन दोनों के बीच में। हाँ, तो आप पाइथन आईडी और उसके बीच में एनाकोंडा के। ठीक है, कर लो, नो प्रॉब्लम। देखो कोडिंग इज सेम, कोडिंग है, सिंटेक्स है, वो सब में सेम है। यस मैम। ठीक है, बस इंटरफेस वहाँ पे, हाँ बस इंटरफेस डिफरेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट सेम है, सिंटेक्स सेम है। यही एडवांटेज है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, आप कोई भी बुक रेफर करो, आप कोई भी आईडी यूज करो,
एट द एंड ऑफ द डे आपको आउटपुट वही मिलेगा, बस आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए। प्रोग्राम मीन्स आपका सिंटैक्स, आपका जो लॉजिक है वो करेक्ट होना चाहिए। बेटा n is greater than 2 means number of input is greater than 2. Number of inputs, here n is the number of inputs, okay, not 0 and 1. clear है ये पार्ट? मैम आपने ये वाला पीपीटी भेजा है क्या ग्रुप पे? हाँ बेटा मैंने भेजा है, पर मैं फिर से भेजूंगी क्योंकि लास्ट में देख रही थी ना, इसमें आपका जो ये वाला एक्सॉर गेट का है, इसमें उसमें जहां से मैंने इसको डाला है ना, वहां पे उसने ए बी बार पूरे पे बार करा हुआ है, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो मैं ये मैं दोबारा सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके तो वो आप लोग इस उस वाले को डिलीट कर देना, इसको यूज कर लेना, ठीक है? नाउ एक्सनॉर, तो इसमें क्या होगा एक्सनॉर में, यहाँ पे जो आउटपुट है, द आउटपुट विल बी इन फॉर्म ऑफ दिस। पहले हम ए बार और बी बार का एंड करेंगे। हाँ मैम एक्सॉर का वो रहेगा ना, इन्वर्ट, नॉट, हाँ एक्सॉर का नॉट। हाँ, बट द ऑपरेशन, ये जो पूरा आपका लॉजिक है ना, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, द लॉजिक बिहाइंड दैट। लॉजिक क्या है, हम इसमें पहले ए और बी बार का, ए बार और बी बार का एंड करते हैं और ए बी का एंड करते हैं, फिर हम सबका और कर देते हैं, तो हमारा एक्सनॉर गेट हो जाता है, ठीक है? तो ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत है दोबारा कि आप लोग खुद से इसको ट्राई करोगे, पूरी बड़ी वाली ट्रुथ टेबल? देखो जैसे एक्सॉर में होता है नंबर ऑफ इनपुट्स में, अगर वंस जो है हमारे वो आपके इवन होंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। एक्सनॉर में इसका उल्टा होता है, अगर आउटपुट इनपुट में जो हाँ इनपुट सिंबल्स हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन में बताऊंगी अभी। तो इसमें देखो आउटपुट 1 होगा इफ नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स इज इवन, ठीक है? इनपुट सिंबल्स यहाँ पे 1 या जीरोस में नहीं है, ठीक है? अगर इनपुट सिंबल मतलब चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, अगर 0 भी इवन होगा तो भी आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है? और अगर इनपुट में नंबर ऑफ वंस भी इवन होंगे तो भी मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। क्लियर है ये चीज? हाँ एक्सनॉर में दोबारा से बताती हूँ। देखो इसमें मैं बोल रही हूँ कि अगर इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो अगर मेरे में इनपुट में चाहे 0 हो, अगर 0 इवन होगा तो भी मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर 1 इवन होगा तो भी मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा, ठीक है? ये क्लास आप लोगों की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाती है क्या आप लोगों के लिए? ये 9 o'clock भी अर्ली है क्या? इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं सारे? कल टेस्ट था ना मैम, इसलिए। ओके, तो टेस्ट लेट नाइट था? मतलब लेट नाइट नहीं होता मैम, उसके बाद थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, तो टेस्ट के बाद पढ़ना पड़ता है? मैम हर संडे होता है ना टेस्ट, इसलिए। हाँ तो टेस्ट मींस लेट नाइट तो नहीं होता ना? मैम रेगुलर क्लास भी 9 o'clock को ही होता है। ओके चलो ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स आइदर 0 और 1, इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट्स है चाहे 0 हो चाहे 1 हो, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स में सेम होंगे, इवन होंगे, और तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे 0 0 है तो ये इवन है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे 0 ऑड है और 1 भी ऑड है, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। सिमिलरली 1 1 में नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, 1 जो है वो क्या है, इवन है, इसलिए मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है? तो 3 इनपुट्स के लिए सपोज मेरे पास 0 1 1 है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? मैम 1 मिलेगा। 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इसमें वंस जो है वो क्या है, इवन है। 0 0 1 में भी 0 0 1 है, तो इसमें आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि नंबर ऑफ 0 मिलेगा। 0 इवन है ना? हाँ मैम 0 इवन है। मैम 1 का काउंट करते हैं ना हम, इवन या ऑड? आइदर ऑफ द इनपुट,
Either of the input is even. Ma'am, no, it is said in the textbook that even number of ones, even or odd number of ones. It does not matter with the zeros. And the As same, far as I know, इसमें तो यही होता है कि ma'am, input symbols अगर zero ma'am, है it तो. in the textbook is given 0, 0, 1, and output is 0. Let me check then if ABC bar. So for 0, 0, A will be 1, B will be 1, and C will be 0. It will apply and इसका input हो जाएगा 0 plus 1. No. If it is in your textbook, then the textbook is wrong. The output in Ma'am, XOR I agree we see the input as 1, but in XNOR if either of the input is even, you can calculate it. This is your formula. ma'am, Okay. I calculated also. If we do A, B, C, then two of them are 0 and one of them is 1. So if we multiply all them, it would be Okay. 0. A bar, B bar, and C bar. Yes, ma'am. Okay. A bar, B bar, and C bar. If the input A bar will be, A is 0, so A bar will be 1. B bar is 0, so B bar will be 1. 1. C is 1, then C is 0. Okay, C bar is 0. So output of AND of this will be 0. Got it? Yes, ma'am. Okay. Now ABC. Okay, ABC. This is AND. The output will be 0. Yes, ma'am. And 0 plus 0 is 0. 0. You can refer any textbook, either Sumita Arora or your NCERT textbook. Okay? Okay, so okay, then we can say this A bar, B bar, and C bar plus ABC. Let me check for another input also, okay? Then I'll tell you. For 0, 1, 0. 0 is even here. 1, 0, 1. Okay, the output will be 0, ABC 0. Okay, correct. Correct. If the number is, it will be opposite of XOR. Okay, it will be the opposite of XOR. So in XOR, what we were saying that if the number of ones is odd, we will get the output as 1, and if the number of ones is even, we will get the output as 0. And in and here, if the number of ones is what? Even, we'll get the output as 1. 1. Okay. So if it is 0, 1, 0, the output will be 0. Okay, because the number of ones in the input is odd. Okay. But I need to check it for number of inputs, some other number of inputs also. Okay. So the next is De Morgan's theory. देखो डी मॉर्गन ने दो एक्सप्रेशंस दिए थे, दो लॉज दिए थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड और एंड नॉट गेट. और उसमें ये था, उस थ्योरम में ये है, थ्योरी में फर्स्ट चॉइस कि जो भी हम इनपुट वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, और उनको निगेट करते हैं, ठीक है, तो एंड को हम और में कन्वर्ट करते हैं और को एंड में कन्वर्ट करते हैं, जो आउटपुट होता है, निगेशन होता है उसका, ठीक है. डिटेल में देखते हैं इसको. जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये है कि अगर हम ए और बी, सपोज मेरे पास दो इनपुट्स हैं और उन दोनों के एंड को का निगेशन करते हैं, मींस इन दोनों के एंड को हम इन्वर्ट करते हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? दोनों इनपुट्स के इन्वर्ट का और, ठीक है. एज यू कैन सी हियर,
मैंने क्या किया, ए बी, पहले यहाँ पे देखो ए बी बार और ए बार प्लस बी बार में डिफरेंस है। यहाँ पे ए बी बार का क्या मतलब है कि पहले मैंने ए डॉट बी परफॉर्म किया है और फिर इसके आउटपुट को मैंने इन्वर्ट किया है, ठीक है। लेकिन ए बार प्लस बी बार का क्या मतलब है कि मैंने पहले ए बार को ए को इन्वर्ट किया है, फिर बी को इन्वर्ट किया है और फिर उन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस ए प्लस बी होल बार, ठीक है। ये और ये डिफरेंट होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। तो डी मॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो यही स्टेट करता है कि अगर हम कोई भी एंड ऑपरेशन इनपुट वेरिएबल्स पे परफॉर्म कराते हैं और फिर उसको निगेट कर देते हैं, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट आउटपुट मुझे मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उस इनपुट वेरिएबल का, इंडिविजुअल इनपुट वेरिएबल को, और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दोज इनपुट वेरिएबल्स एंड और ऑफ दोज, ठीक है। तो इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ, मतलब अगर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे ना इसका, तो ए बी बार का जो आउटपुट होगा और ए बार प्लस बी बार का जो आउटपुट होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 0 0 दो इनपुट्स पे चेक करते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ए बी परफॉर्म कराऊंगी, पहले एंड परफॉर्म कराते हैं, दैट इज ए डॉट बी, या बार डायरेक्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। तो ए डॉट बी का आउटपुट क्या, ए डॉट बी विल बी 0 और उसका इन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। फिर 0 1 जो है, 0 1 का आउटपुट मुझे मिलेगा 0, उसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा 1। फिर 1 0 का आउटपुट होगा 0, इन्वर्ट हो जाएगा 1, 1 1 का आउटपुट होगा 1, इन्वर्ट हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम ए बार प्लस बी बार की बात करते हैं, ए बार प्लस बी बार। अब यहां से क्या होगा, ये 0 0 है तो ए बार बी बार क्या हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1 विल बी 1। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1, ए बार विल बी 1, बी बार विल बी 0, 0 तो 1 0 विल बी 1। 1 फिर ए बार विल बी 0, बी बार विल बी 1, सो दोनों का और करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ए बार विल बी 0, बी बार विल बी 0, द आउटपुट विल बी 0। 0 क्लियर है? तो दोनों के जो आउटपुट है वो सेम है। तो यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड और ऑपरेशंस को, मतलब जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ एंड एंड और, ठीक है। और हाँ एक चीज और, इक्विवेलेंट जो आउटपुट है वो एंड नैंड फंक्शन परफॉर्म करा रहा है, ठीक है। सेकंड है ना, सेकंड थ्योरम। नहीं ये फर्स्ट थ्योरम है, कोई भी ले लो, दो थ्योरम्स है, आइदर ऑफ द वन कैन बी फर्स्ट एंड आइदर ऑफ देम कैन बी सेकंड, ठीक है। ये आपका टेबल है, ये आप देख लेना, मैंने बताई दी है। ये आपका वो बना हुआ है, गेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपका एंड गेट है और उसका इन्वर्ट हो गया तो नैंड गेट हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव और, ठीक है, या नॉर गेट की बात करते हैं। तो ये है आपका पहले ए का इन्वर्टर, फिर बी का इन्वर्टर जो कि ए बी है, फिर दोनों का और कर दिया है तो ए बार बी हो गया है, ठीक है। लॉजिक गेट्स के फॉर्म में इसका इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट लॉ का। Next is second theorem. Second theorem states that if we'll take the input variable and OR them and negate them, the output will be the complements of the AND of those individual variables. तो यहाँ पे उसका उल्टा है, वहां पे हम AND का इन्वर्ट कर रहे थे और हमें आउटपुट में मिल रहा था और, ठीक है, जो इनपुट्स थे उनके कॉम्प्लीमेंट का और यहाँ पे उसका उल्टा है, हम और करके उसको निगेट कर रहे हैं और आउटपुट में हमें मिल रहा है इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट और उसका एंड, ठीक है। क्लियर है? तो जो LHS है वो नॉर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा और जो RHS है वो निगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, देखो ए बी बार इज 1, ए प्लस बी बार इज 1 0 0, ठीक है, और a bar dot b bar is 1 0. The output is same for a plus b bar and a bar dot b bar. Clear है? Yes ma'am. Next, this is your implementation. नॉर के लिए पहले मैंने एक और गेट लिया है, फिर उसका इन्वर्ट कर दिया है उसको, तो a plus b bar, और नेगेटिव एंड के लिए पहले a और b का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज a bar और b bar विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ये नॉट गेट आप लोगों को पता है, और फिर इसका एंड कर दिया है,
तो a बार डॉट b बार। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैं लिख रही हूँ ना a बार डॉट b बार, तो यहाँ पे पहले हम a बार का इन्वर्ट करेंगे और फिर b बार का इन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें एंड परफॉर्म करेंगे। बट a डॉट b के पूरे के ऊपर अगर बार लिखा है तो ये और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दीज बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. 3 या 4 वेरिएबल्स पे भी वैसे ही करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बार पूरे पे लगेगा और राइट हैंड साइड पे बार विल बी ब्रेक्ड। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ यूज होते हैं तुम्हारे लॉजिक गेट्स। माइक्रो प्रोसेसर नाम सुना है? माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? मतलब जो ऑलरेडी है सिस्टम में, जो इंस्टॉल्ड रहते हैं ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एम्बेडेड। अच्छा, यूर ठीक है, आप बोल रहे हो जो पहले से इंस्टॉल्ड है एम्बेडेड। ठीक है, तो जितने भी आपके माइक्रो या टीवी स्क्रीन्स हैं या आपकी मोबाइल स्क्रीन्स है, जो भी चीजें हैं ना, इसमें जो कनेक्शंस हैं अंदर, वो सारे क्या हैं आपके, उसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी इनपुट सप्लाई हो रही है ना फॉर्म ऑफ पावर, वहां पे आपके लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, कभी भी जो भी पावर सप्लाई हो रही है उसको हमें इन्वर्ट करना है, तो वहां पे हमारा कौन सा गेट यूज होता है? नॉट गेट यूज होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी आउटपुट कि हमें कैसे इनपुट पे कैसा आउटपुट चाहिए। तो जिस टाइप का इनपुट होगा और किस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग लॉजिक गेट यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट हर जगह यूज होते हैं आज की डेट में। मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स आपके होते हैं इनमें, माइक्रो प्रोसेसर में, कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में। जब आप लोग बीटेक करोगे, इनकेस कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में करोगे, तो आपको पूरा एक सब्जेक्ट होगा बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पहले पढ़ना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में कैसे एम्बेड किया जाता है लॉजिक गेट्स को। ठीक है, एडर सब्ट्रैक्टर्स होते हैं, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, और यहाँ आपको पाइथन में जो यूज करना है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो यूज है, वहाँ पे गेट्स का यूज नहीं है, वहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज है। एंड और नॉट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो डायरेक्टली हम उनका नाम यूज करते हैं इन पाइथन। जैसे अगर हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम बीच AND लिखते हैं, और ये वहां यूज होता है अगर हमें कोई दो कंपैरिजंस करने हैं। सपोज मुझे इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बीच में। ठीक है, इन बिटवीन, या x इज ग्रेटर देन 1 और x इज स्मॉलर देन 10, ऐसे करके यूज करना है। तो वहां पे हम आपका ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इसलिए मतलब यहाँ पे आपके अभी जो कोर्स में है, इसमें पढ़ाने का मोटिव सिर्फ ये है क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना होगा, जहाँ पे आपका रिलेशनल कंपैरिजंस होते हैं। ठीक है, मैम आज हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे क्या? लेट्स होप कि स्टार्ट करते हैं हम। अभी मेरे को थोड़ा सा आपको अच्छा, अगर आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं तो वील जस्ट गो थ्रू इट, और हम फिर पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं आज। हाँ, आप लोगों ने एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है? नो मैम। नो। बहुत बेसिक सा है ये, मैं बस आपको एक बार इंट्रो दे देती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं उनके। मैम एक बार फिर से बताइए ना, कौन सा ऐप डाउनलोड करना था? ऐप डाउनलोड नहीं करना, ऐप नहीं करना है बेटा, हमें IDE डाउनलोड करना है। आप स्पाइडर IDE सर्च करोगे ना गूगल पे, या मैं एक काम करूंगी ना, मैं आपको जो नोट्स दूंगी उसमें मैं आपको पूरा लिंक ही फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, एनाकोंडा से ही, मतलब स्पाइडर डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगा, उसके लिए आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना होगा। और एनाकोंडा के साथ आपको 2-3 चीजें मिल जाती हैं। एनाकोंडा शेल मिल जाता है आपको, जुपिटर मिल जाता है, और आपको स्पाइडर, तीनों मिल जाएगा उसमें, अगर आप एनाकोंडा डाउनलोड करते हो तो। नहीं समझ आ रहा क्या करना है। अब मैं एक काम करूंगी ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जो ये मेरी नोट्स में फॉरवर्ड करूंगी ना जब गीता मैम को, तो मैं लिंक भी भेज दूंगी उसका, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीसी पे। क्या वो लोग मोबाइल ऐप सोच रहे हैं मैम।
ओके नहीं नहीं बेटा, आपको ये आपको लैपटॉप पे करना होगा, मोबाइल पे नहीं करेंगे इसको हम लोग। मैम मैम पाइथन आईडी यूज कर सकते हैं ना? हाँ पाइथन आईडी यूज कर सकते हैं, पाइथन आइडल जो भी आईडी आपको चाहिए, मतलब कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, बट आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद हाँ मैम हमारे टेक्स्ट बुक में बूलियन अलजेब्रा कौन सा लेसन है? आई थिंक इट विल बी हाँ थर्ड और फोर्थ, किसी किसी बुक में थर्ड है, किसी में फोर्थ है। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, there are certain laws given in the textbook. What type of laws? In Boolean algebra, idempotence law, evolution. No, that's all not in your syllabus. You just have to go through this De Morgan's only. उसको एक्सक्लूड किया गया है ना मैम? हाँ अभी इस बार शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो अभी इतना डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चंस भी उतने डीप में आते नहीं है, क्योंकि यह है ना गेट्स वगैरह बनाने के लिए या प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें आती नहीं, बहुत ज्यादा आता है आपको तो ट्रिक टेबल ड्रॉ करने को आएगा, अदरवाइज कुछ ऐसा प्रूफ नहीं। और प्रूफ करना भी है तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक टेबल ही करना है आपको। आप कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हो क्या लॉजिक गेट्स? हाँ मैं भेज दूंगी आपको क्वेश्चंस। मैम ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है क्या? हाँ है, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में तो सारा कुछ है, बट वही है कि एनसीईआरटी में ना थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो जब भी मैं उसको रेफर करती हूँ तो कुछ मुझे उसमें देखना पड़ता है, टैली कराना पड़ता है। मैम सो वी कैन रेफर सुमिता अरोरा। हाँ सुमिता अरोरा इज अ वेरी गुड बुक। अभी ये जो 0 और 1 का इवन ऑड का प्रॉब्लम हुआ है ये एनसीईआरटी की वजह से ही हुआ है। ओके ये एक्स नॉर में। चलो तो मैं जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप लोग समझते क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? नो यू डोंट नीड टू बाय एनसीईआरटी इफ यू हैव सुमिता अरोरा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? हेलो, am I audible? Yes ma'am, you are audible. So tell me, what do you mean by problem solving? Problem solving means solving problem. This is not the answer. देखो, let's take an example, एक real life example ले। हाँ बोलो। Like analyzing a problem and trying to think about the logic and how to solve it. Yes. By using some algorithm. So let's take an example, a simple example of a car. Suppose you go to start your car, okay, and there is some weird noise that is coming from the car. So what we'll do? We will try to identify from where the noise is coming, and if we'll not able to identify, we'll call the mechanic. What he'll do? वही करेगा, वो पहले जाएगा, देखेगा, चेक करेगा कार की कहाँ से नॉइस आ रही है, फिर वो बताएगा हमें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो बताएगा कि इसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर वो उसको एज पर रिक्वायरमेंट वो रिपेयर करेगा कार को, है ना। तो एक अप्रोच है कि ये एक प्रोसेस है कि पहले ये करेगा, वो पहले चेक करेगा, फिर उसके बाद वो हमें बताएगा, फिर उसके बाद वो सामान लेके आएगा, फिर उसके बाद वो उसको रिपेयर करेगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि एक प्रोसेस, हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें गिवन है इन योर कंप्यूटर्स, इन योर रियल लाइफ, तो उसको सॉल्व करने का एक अप्रोच क्या है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली योर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दिस। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्योंकि भाई अब हम हर चीज वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। तो अगर मैं कंप्यूटराइजेशन की बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि वी नीड टू डेवलप अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग सिस्टम है। इनिशियली जब हम लोग छोटे थे तो क्या था, बैंक में सारे प्रोसेस मैनुअल होते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, सारी बैंक्स कंप्यूटराइज्ड हैं, ईच एंड एवरी प्रोसेस इज ऑन सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया है, पहले एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, लेकिन उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है, इट टुक अ डिकेड, ठीक है, डिकेड बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें कब से चली आ रही हैं अब मुझे भी नहीं पता, है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया होगा, पहले उन्होंने देखा होगा कि हमारा उनका डेटाबेस कितना बड़ा है, फिर उन्होंने उस डेटाबेस को एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया होगा,
फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया होगा कि जो नॉन कंप्यूटर यूजर्स हैं उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा। मतलब थोड़ा यूजर फ्रेंडली। हाँ, यूजर फ्रेंडली बनाया होगा उसका स्ट्रक्चर, जो उसका GUI है वो आराम से यूज कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे जो बैंक में लोग वर्क करते थे दे वर नॉट फ्रेंडली टू कंप्यूटर्स। अब नाउ अडेज कंप्यूटर स्टार्ट की क्लास 6 से ही बच्चे कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, बट पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा, तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर अप्रोच है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उन लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसको, वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, ये नहीं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉब्लम एक्चुअली इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अनटिल अनलेस मैं प्रॉब्लम को नहीं समझूंगी, मैं एनालाइज नहीं करूंगी, तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती हूँ। टेक एन एग्जांपल कि सपोज मुझे सामान शिफ्ट करना है अपना, मैंने मूवर्स एंड पैकर्स को फोन कॉल किया कि भाई मुझे सामान शिफ्ट करना है, तुम एक व्हीकल भेज दो। अब मैंने उसको ये तो बताया नहीं कि मेरा सामान ज्यादा है या कम है, या ना उसने मुझसे पूछा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अब वो सपोज मुझे कोई छोटा व्हीकल भेज देगा तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पहले हमें एनालाइज करना है। एग्जांपल आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का एग्जांपल लो। सॉर्टिंग आप लोगों ने सुनी है, बबल सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होते हैं, कई सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को या अल्फाबेट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो सपोज किसी ने मुझे बोला कि भाई तुम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दो, मैंने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दी। अब मैंने जो इम्प्लीमेंट किया वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर के लिए इम्प्लीमेंट किया, बट उसे जो चाहिए था उसको वो चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, प्रॉब्लम तो लेकिन उसकी सॉल्व नहीं हुई ना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए था, मैंने असेंडिंग कर दिया, है ना। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दैट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। हमें पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। अब एक बार मैंने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली, मैंने डिटेल्स लिख ली अपनी प्रॉब्लम्स की, फिर हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है आपका स्टेप बाय स्टेप नेचुरल लैंग्वेज में रिटन होता है, ठीक है, जो कि कोई भी उसको अंडरस्टैंड, मतलब अगर कोई नॉन प्रोग्रामर है तो भी वो उस चीज को समझ सके कि अभी इसके बाद क्या करना है। आप लोगों ने पढ़ी होगी एल्गोरिथम हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, सबसे इजी आपकी एल्गोरिथम वही थी, ठीक है। स्टार्टिंग बोलते हैं उसको, एल्गोरिथम का स्टार्टिंग वही होता है। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप, जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी एल्गोरिथम। तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम देन डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो एक हम टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हैं एल्गोरिथम्स में कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और एल्गोरिथम को भी हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिफाइन कर सकते हैं कि और इजीली और कम स्टेप्स में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम स्टेप्स हमें लेने पड़े इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डेवलपिंग एन एल्गोरिथम इज द सेकेंड स्टेप। उसके बाद हमारा आता है कोडिंग, ठीक है। अब एक बार एल्गोरिथम अगर आप डिजाइन कर लोगे ना, सपोज यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स, सिंपल सा है, हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, और वो 2 नंबर्स हमें यूजर से इनपुट देने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्गोरिथम अगर उसके लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम पहला नंबर मांगेंगे यूजर से, फिर हम दूसरा नंबर मांगेंगे यूजर से, यूजर को बोलेंगे कि इनपुट करो पहला नंबर, फिर बोलेंगे दूसरा नंबर इनपुट करो, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट को यूजर को बता देंगे। यही सिंपल सी एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अगर एक बार मैंने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर ली, फिर उसको कोड करना, अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, इफ वी आर फैमिलियर टू अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फिर हमें उस एल्गोरिथम को कोड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हमें उसके सिंटेक्स पता है, हमें ये पता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराते हैं, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। अगर हमें कोडिंग की नॉलेज है तो वी कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो एल्गोरिथम अगर डिजाइन है तो वी कैन जनरेट अ डिजायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, नाम आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, सी प्लस प्लस, पाइथन आप लोग पढ़ोगे ही, जावा, विजुअल बेसिक थी, विजुअल सी शार्प है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब एक बार जब आपका प्रोग्राम बन गया तो फिर उसकी होती जो लास्ट स्टेप है वो होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है, प्रोग्राम को टेस्ट करना। अब उसने मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाने को बोला था,
मैंने उसको कुछ और ही बना के दे दिया, या प्रॉपर एडिशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें टेस्टिंग और डिबगिंग करने की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, C++ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, ठीक है, कि मैंने जो भी प्रोग्राम बनाया है यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोग्राम बन गया, सक्सेसफुली रन कर रहा है, बट इट इज नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, तो प्रोग्राम वेस्ट है, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम में। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग में यही सारे काम होते हैं। अगर कुछ इनकरेक्ट आउटपुट मिल रहा है तो उसके केस में हम प्रोग्राम को दोबारा से चेक करेंगे। क्लियर है इतना? यस मैम। इसके बाद है आपका एल्गोरिथम को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड बोलते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट आपका सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में, डिफरेंट हाँ डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट आपका एल्गोरिथम का। तो पहला जो शेप है वो ओवल शेप है जो कि स्टार्ट और एंड दिखाता है प्रोग्राम का, ठीक है। स्टार्ट मतलब हम फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो ऊपर स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर एक एरो बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इनपुट या आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट या आउटपुट लेने के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट देने के लिए पैरेललोग्राम शेप यूज करते हैं और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम शेप यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला इनपुट नंबर 1 या इनपुट नंबर 2, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पैरेललोग्राम यूज करना होगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस आपका होता है जो एडिशन ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, A+B, दो नंबर्स को मैंने ऐड किया, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है, ठीक है। और ये आपका डायमंड शेप जो होता है वो डिसीजन के लिए होता है, जहां हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए होता है। इज ए ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो उसको हम डायमंड बॉक्स में लेंगे अगर मेरे पास कहीं डिसीजन है। और लास्ट हमारा एरो है, तो एरो जो होता है वो कनेक्टर होता है इन सारे ब्लॉक्स को, जितने भी आपके ये शेप्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए हम एरो यूज करते हैं। मैम ये पहले भी किया था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, जैसे एल्गोरिथम हम लिखते हैं वही इनपुट यूज किया हमने, कुछ टर्म्स हैं इसमें, इनपुट हुआ, कंप्यूट है, प्रिंट है। इनपुट यूज कर रहे हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए, कंप्यूट एडिशन परफॉर्म या सबट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्रिंट आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बढ़ाने घटाने के लिए, इफ एल्स यहाँ पे यूज हो रहा है आपका कंपैरिजन के लिए, व्हाइल आपका लूप के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो एक सिंपल सा इसमें एल्गोरिथम लिखना था स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट के फॉर्म में, वो मैंने बता दिया। फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, इनपुट नंबर 1 इनपुट नंबर 2, दो नंबर्स इनपुट किए, कंप्यूट रिजल्ट में मैंने नंबर 1 प्लस नंबर 2 को स्टोर करा दिया है। अब क्योंकि रिजल्ट में मेरा आउटपुट है तो प्रिंट में मैंने रिजल्ट लिख लिया है, ठीक है। अब जब मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, पहले मैं एक ओवल लूंगी, वहां पे स्टार्ट करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट में इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इसमें मैं नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूट करना है, तो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। रिजल्ट को मैं स्टोर कराऊंगी, रिजल्ट में स्टोर कराऊंगी n1 प्लस n2, और फिर आउटपुट जो मुझे देना है वो किस में दूंगी, अगेन पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में मैं r प्रिंट करा दूंगी और फिर लास्ट में मैं अपने प्रोग्राम को या फ्लो चार्ट को एंड कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट हमेशा ओवल से होगा, एंड हमेशा ओवल से होगा, और बीच में हमारे बाकी सारे ब्लॉक्स यूज होते हैं। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट है। यहाँ पे स्टार्ट, रीड नंबर 1 नंबर 2, फिर प्रोसेस हो रहा है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, देन फिर आउटपुट मिल रहा है, प्रिंट रिजल्ट। रेक्टेंगल में कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, मतलब हाँ फंक्शंस भी यूज करते हैं उसमें, ठीक है। अभी यहीं पे अगर मुझे कंपेयर करना होता, बाप रे अब इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मुझे यहीं पे कोई कंपैरिजन करना होता तो मैं बीच में एक डायमंड ड्रॉ करती, यहाँ पे मैं लिखती इज num1 इज ग्रेटर देन num2, ऐसे करके कुछ है। अगर ट्रू होगा तो मेरा फ्लो दूसरी साइड जाएगा, फॉल्स होगा तो फ्लो दूसरी साइड जाएगा। एल्स फंक्शन, हाँ इफ एल्स के लिए यूज होता है ठीक है मैम। आप ये वाला एक और बार समझाइए ना, डायमंड वाला। यस मैम। देखो सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 नंबर्स, कंपेयर करना है 2 नंबर्स, ठीक है, ठीक है, 2 नंबर्स कंपेयर करने हैं। अब इसके लिए अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो 2 नंबर कंपेयर करने के लिए पहले मुझे 2 नंबर्स इनपुट कराने होंगे। मैंने स्टार्ट किया,
ठीक है, मैंने इनपुट लिया, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, एंटर नंबर्स, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब नंबर एंटर करने के बाद हमें कंपेयर कराना है दो नंबर्स, ठीक है, तो कंपेयर कराने के लिए नंबर्स इसको इसमें कर लो, हाँ एंटर 2 नंबर होगा ना, हाँ एंटर 2 नंबर्स, एंटर n1 एंड n2, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंटर नंबर्स n1 एंड n2 दो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, तो जहां पे कंपैरिजन होगा वहां पे हम डायमंड वाला बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करना है। कंपेयर करने का क्या मतलब है, हमें ये देखना है कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इज n1 ग्रेटर देन n2। अगर मैंने ये लिखा, अगर ये ट्रू है, अगर n1 n2 से बड़ा है तो हम क्या लिख देंगे, रिजल्ट में n1 इज ग्रेटर, प्रिंट, रिजल्ट में हम लिख देंगे प्रिंट n1 इज ग्रेटर, प्रिंट की जगह मैं बस p लिख रही हूँ, प्रिंट n1 इज ग्रेटर, ठीक है, अगर ये ट्रू है यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लिखेंगे प्रिंट n2 इज ग्रेटर, प्रिंट n2 इज ग्रेटर। क्लियर है ये चीज? यस, मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एंड कर देंगे, एंड कर दूंगी। आया सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। पैरेललोग्राम, ओके मैं शो करती हूँ आपको फ्लो चार्ट वाली स्लाइड। पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है। एक मिनट, उस दिन जब मेरा सिस्टम हैंग हुआ था ना, द प्रॉब्लम वाज दैट कि मेरा एक आपका जो ये है ना पीपीटी ओपन थी ऑलरेडी और मैंने दूसरी स्टार्ट कर दी थी। ये है आपका फ्लो चार्ट वाला स्लाइड। आपके पीसी में बहुत कम रैम है क्या? नहीं, मेरा रैम तो ज्यादा है, बट वो कभी कभी इशू आ जाता है, काफी पुराना है क्योंकि। मैम कितना है रैम आपके पीसी पे? शायद है, I don't remember, 128 GB तो है हार्ड डिस्क। मैम रैम जस्ट अ मिनट, हाँ चलो देख लो, ये फ्लो चार्ट वाली स्लाइड देख लो। दिस इज योर स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, जो आपका ओवल शेप होता है। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप यूज करते हैं। पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है पैरेललोग्राम। और एरो इज यूज्ड फॉर दिस थिंग, फ्लो दिखाता है हमारे एरोज का, मतलब एरोज जो होता है फ्लो दिखाता है कि कैसे कनेक्टेड है हमारे ये ब्लॉक्स आपस में, ठीक है। yes. किसने पूछा था ये? चलो, बेनिफिट्स ऑफ सूडो कोड वही है, आपको प्रोग्राम पहले से लिख लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका इजी होता है। अगर कोई नॉन प्रोग्रामर है तो उसके लिए वो समझना आसान होता है क्योंकि ये जनरल लैंग्वेज होती है सूडो कोड की। नेक्स्ट इज योर कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, देखो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, सब लोग सब लोग बोलते हैं जावा जो है वो इंटरप्रेटर यूज करती है, सी कंपाइलर यूज करती है। जावा में कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले हमें पहले पाइथन में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि पाइथन इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड है, ठीक है। तो अब कंपाइलर है, इंटरप्रेटेड है, उसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, ठीक है। एंड जो मेजर डिफरेंस है एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, ये दोनों जो है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज को, या मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
हाँ ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, अब हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है, कंपाइलर टेक द प्रोग्राम एज होल एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन लेता है, ठीक है। तो आपका जो ये कंपाइलर है वो तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती हैं उसमें क्या होता है, हम कोई कोड लिखते हैं फिर कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो क्या होता है, एक टारगेट कोड प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वही टारगेट, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है। और फिर वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है, ठीक है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें कंपाइलर यूज होता है, वहां पे जो मेन यूज है, इट इज यूज ऑफ दैट एग्जीक्यूटेबल कोड। अगर सिर्फ आप वो एग्जीक्यूटेबल फाइल किसी और सिस्टम में ले जाके रन कराओगे ना, अगर वो सेम वर्जन का है, कोई वर्जन में डिफरेंस नहीं है, तो वो आराम से रन करेगा, हमें उसके लिए सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई, जैसे आप लोग exe वगैरह यूज करते हो, ex.exe इज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो अगर वर्जन्स मैच कर रहे हैं हमारे, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हर एक पीसी पे रन करेगी, इसके लिए सोर्स कोड की जरूरत नहीं होती। तो कंपाइलर के केस में क्या होता है कि अगर मैंने सोर्स कोड को चेंज कर दिया है, कंपाइल कर दिया है एक बार, और एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस हो गई है या मशीन कोड प्रोड्यूस हो गया है, तो सोर्स कोड फिर तभी यूज होगा जब उसमें हम कोई चेंजेस करेंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो सोर्स कोड का यूज नहीं होता है। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ ऐसा नहीं होता है। जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन हम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, एक एक लाइन। तो सोर्स कोड से डायरेक्टली हम आउटपुट पे आते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इंटरप्रेटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें क्या है, ये कन्वर्जन नहीं होता है। अगर प्रीवियसली कन्वर्टेड कोड्स हैं तो उसको भी वो क्या करेगा, जैसे आपका जावा है, उसमें क्या होता है, पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है। तो जो बाइट कोड प्रोड्यूस हो रहा है वो बाइट कोड लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो रहा है जावा में, ऐसा होता है, ठीक है। वो मशीन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता। हाँ ठीक है। तो इंटरप्रेटर में क्या है, जैसे पाइथन इज कंप्लीट, पाइथन में क्या है, इंटरप्रेटर ही यूज होता है। तो पाइथन में जो सोर्स कोड है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका मशीन कोड होता है, ठीक है। तो कभी भी हमें प्रोग्राम रन कराना है तो इसके लिए हमें सोर्स कोड चाहिए होगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का क्या है, सोर्स प्रोग्राम प्लस इनपुट आपका आउटपुट देता है। डिफरेंस देख लो, दो डिफरेंट आपके ट्रांसलेटर हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड which is typically stored in a file, whereas interpreter directly executes instructions written, ठीक है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम जो कंपाइल हो जाते हैं उसका फिर सोर्स कोड यूजफुल नहीं होता है प्रोग्राम रन करने के बाद, बट इंटरप्रेटेड प्रोग्राम में सोर्स कोड इज इक्वली यूजफुल, ठीक है। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम स्लोअर होते हैं, ये आपके पाइथन का डिसएडवांटेज भी रहा है इनिशियली, आज की डेट में वो नहीं है, बट इनिशियली जब 1991 में पाइथन इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये उसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। बट बाद में वो क्योंकि स्लो थी, हर लाइन, क्योंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए आपका जो प्रोसेस अभी भी है ऐसा कि पाइथन इज स्लोअर, बट पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन ज्यादा यूज हो रही है आजकल। जितनी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं सब में पाइथन यूज होती है, बिकॉज ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस में। हाँ, उसके इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उसका जो आपका लाइब्रेरीज हैं, ये सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जावा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है इंटरमीडिएट कोड में और फिर इंटरप्रेट होता है। तो जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। हाँ, अब ये आ जाओ, कौन क्वेश्चन मांग रहा है, क्या क्वेश्चन थे, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल दे दो। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप कोड लिखते हो, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल, बेसिक, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज आपकी है मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। बहुत फास्ट जा रही हूँ मैं? नहीं मैम। प्रसन्ना, आप बता सकते हो मुझे कि क्या चीज नहीं समझ में आई है?
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, तो मैं वो चीज दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. पार्थ एंड प्रसन्ना. I didn't say anything. Okay, it might be another part. 003 है लास्ट में आईडी में. Yeah, that is other. प्रसन्ना, I hope I'm pronouncing the name right. मैम समझ में सब आया है, पर मैं ऐसे बोल रहा था, हमने पहले नहीं पढ़ा ये. अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया है ना सारा. मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगी, आप एक बार गो थ्रू हो लेना. इफ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो गीता जो ग्रुप में है ना, आप या गीता मैम को बोल देना, शी विल कम्युनिकेट इट टू मी. ठीक है, तो मैं उसको और डिटेल में आपको किसी दिन बता सकती हूँ. ठीक है, ओके मैम. सो लेट्स. 10 तक कुछ पढ़ाया नहीं था, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. कोई बात नहीं. इसमें देखो, पाइथन के साथ ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोग जिसने पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है वो भी आराम से इसको स्टडी कर सकता है. ठीक है, तो पाइथन ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी है, बट इट्स अ गुड लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम नहीं होगी उसको पढ़ने में. ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पाइथन फंडामेंटल्स. बिफोर गोइंग इनटू पाइथन, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो पाइथन है आपकी ना, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है. मतलब आपके डेवलपर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए बोल लो, या लाइब्रेरीज के टर्म्स में, या उसकी एप्लीकेशन के टर्म्स में. ठीक है, तो कोई भी चीज. हाँ मैम, आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 इयर्स में पाइथन इसी जगह पे रहेगा? नहीं, तब तो कोई और लैंग्वेज आ जाएगी. देखो, एज यू कैन सी, इट वाज पाइथन वाज लाइक, क्या बोलते हैं उसको, रिलीज्ड इन 1991. ठीक है, लेकिन अभी कौन सा ईयर चल रहा है? दिस इज 2020, एंड आई गेस पाइथन लास्ट 5-6 और 7 इयर्स में ये मेरे क्या मैं आई वाज इन लाइक इन 2008. 2008 से 10 के बीच में ये लैंग्वेज ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू की, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आया. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जब मार्केट में आया ना, तब इसका यूज ज्यादा शुरू हुआ है. ठीक है, तो वैसे ही अभी भी कोई ना कोई लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि R is also good language, like it is also increasing. हाँ, R बहुत यूज हो रही है आजकल. R की कोडिंग भी यूज है. ठीक है, तो पाइथन ये गुइडो वैन रॉसम ने क्रिएट की थी ये लैंग्वेज इन बिटवीन 1985 टू 1990. ठीक है, उसके पीछे ये इन्होंने ये लैंग्वेज इसलिए जनरेट की थी क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करना चाहते थे जो कि देखने में भी अच्छी लगे यूजर को, और कोई भी उसको आराम से रीड कर सके. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, स्यूडो, अगर कोई प्रोग्राम लिखा है उसका अगर स्यूडो कोड किसी को मिल जाए तो वो नॉन प्रोग्रामर भी रीड कर सकता है. तो पाइथन को इम्प्लीमेंट करने का जो इनका मोटिव था, इट वाज कि वो जो लैंग्वेज है वो कोई भी रीड कर सके. और पाइथन का नाम किस पे पड़ा कि इनको ये बीबीसी का एक कॉमेडी शो था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. ठीक है, तो वो इनको बहुत पसंद था, तो उसके इस नाम पे उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन. ठीक है, और एक चीज और पाइथन में जो बेस्ट है वो ये है कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर जो भी कोडर्स हैं, जो भी प्रोग्रामर्स हैं, वो अपने कोड लिख के या पाइथन का जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. मतलब डेली थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर क्या करते हैं, इस अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये जावा के साथ भी होता है, बट जावा के लिए एक और लाइसेंस खरीदना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें डेली ऑनलाइन आते हैं और कोर्स में मॉडिफाई करते हैं. तो डेली क्या हो रहा है, लाइब्रेरीज जो हैं और रिफाइन हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं.
ठीक है, तो इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रही है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये प्रोग्रामर डिपेंडेंट है, मतलब प्रोग्रामर के लिए फ्री है। ठीक है, तो पाइथन वाज रिलीज इन 1991 बट इट गॉट द हाइप, या ये बोल लो लाइमलाइट में ये तब आई, स्पॉटलाइट में तब आई जब लोगों को प्रोडक्टिव वर्क की जरूरत पड़ी, लाइक मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जरूरत पड़ी, क्योंकि इंटरप्रेटेड है इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता था इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते थे। अब कंपाइलेशन टाइम अगर जावा में कम लग रहा है तो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे ना कि जहाँ टाइम कम लगे लोग उसको प्रेफर करेंगे। बट यहाँ से उसको क्या हुआ, जो रिजल्ट था वो ज्यादा प्रोडक्टिव मिलना शुरू हुआ पाइथन यूज करके। पाइथन में उनको रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्टिव मिला, although the processing was slow, but because of its productive results it came into the limelight। ठीक है, तो जैसे ही आपका मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ शुरू हुआ मार्केट में, वैसे ही आपकी पाइथन का भी ग्रोथ शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को प्रोडक्टिव वर्क की जरूरत थी। ठीक है, अब देख लो ये पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। इजी है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि बेस्ट लैंग्वेज है फॉर अ स्टार्टर, जो नॉन प्रोग्रामर है उसके लिए भी पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, इसके सिंटैक्सेस बहुत इजी होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें ना ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। लाइक जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उन लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं, या मेन फंक्शन है तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन, राउंड ब्रैकेट यूज करना क्या चीज, राउंड ब्रैकेट वो तो फंक्शंस के लिए वो यूज करना फंक्शंस के लिए तो कहीं पे भी यूज करने होंगे ना, वो तो लैंग्वेज है, फंक्शंस के लिए तो यूज करोगे ही ब्रैकेट्स। I mean line ending there is more हाँ, तो ब्रैकेट्स column यहाँ है। पे भी यूज होते हैं, बट वो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स के लिए ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। सपोज 2000 लाइन का एक कोड लिखा है, ठीक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स जो ब्लॉक्स के लिए यूज होते हैं। कहीं पे भी एक ब्रैकेट मिस हो जाता है ना तो उसको ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जावा हो चाहे वो सी प्रोग्रामिंग हो चाहे वो C++ हो। जावा में तो मैंने किया है वर्क, तो कभी कभी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ढूंढने की, वो एरर कहीं और होता है कहीं और दिखाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे सारी चीजें इंडेंटेशन पे डिपेंडेंट होती है। अगर जो ब्लॉक्स हैं वो इंडेंटेशन पे होते हैं, मतलब हम टैब यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपको ब्लॉक बनाना है, आपने टैब यूज किया तो जितनी लाइंस में इक्वल टैब्स होंगे उतनी लाइन वो उस ब्लॉक में आती है। जैसे ही आप टैब से एग्जिट करेंगे वो ब्लॉक ओवर हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था ना आपका कर्ली ब्रैकेट्स का, टू रिप्रेजेंट अ ब्लॉक, उसको यहाँ पे क्रैक किया गया है पाइथन में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ये ईजी है। दूसरा फ्री इन द सेंस, अब आप बोलोगे कि भाई एनाकोंडा हमें डाउनलोड करना था तो हमने तो पैसे दिए नहीं, आराम से डाउनलोड हो गया, फ्री था। तो वो चीज तुम्हारी जावा के साथ भी है। कोड भी फ्री है। हाँ, जावा में थोड़े से जो चीजें हैं सोर्स कोड वो फ्री नहीं है। हाँ, तो सोर्स कोड नहीं, कोर कोड बोलते हैं उसको। हाँ, वो कोर कोड है उसमें कोर कोड। हाँ, तो पाइथन में क्या है, जो कोर जो मैंने भी आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स आते हैं रोज, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर आते हैं, वो जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर जो है इसका पाइथन के कोर कोड पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो पाइथन इज फ्री इन दैट सेंस। ठीक है, जावा में कुछ कोर कोड फ्री है लेकिन कुछ पार्ट फ्री नहीं है। जो नहीं पार्ट फ्री है उसके लिए दे हैव टू पे, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन पाइथन यू कैन मॉडिफाई द कोड, यू कैन ब्रेक द कोड, यू कैन मेक द कोड। ठीक है, यू आर अलाउड टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, एप्लीकेशंस पाइथन को यूज कर सकते हैं हम डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, या वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, कहीं भी यूज हो रही है पाइथन। ठीक है, और इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं इसमें। कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी जस्ट हैव टू एक्सेस टू दी लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इसलिए पाइथन पॉपुलर है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है ना। हाँ, इसमें क्या है आपका, जैसे पाइथन में जैसे C++ में कोई कोड लिखा हुआ है तो यू कैन यूज इट इन योर पाइथन ऑल्सो। मतलब पहले से जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना इज इजी। Actually, I was talking that if there is one operating system and we can use it another because of the source code. Like if it turn to object code, it would be different for every operating system. Yes.
बस अगर, लेकिन उसके लिए भी आपको अगर ये अगेन आई विल से, जो आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इसका पाइथन का जो वर्चुअल मशीन है उसका वर्जन अगर सेम है तो वो रन हो सकता है। Yes, ma'am. ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स सिंप्लिसिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा सोचना है सिंटेक्स के बजाय। सिंटेक्स इसका बहुत इजी है, तो जो सिंटेक्स इजी अगर किसी लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज अपने आप ही सिंपल हो जाती है। ठीक है, मतलब हमें याद नहीं रखना है कि जैसे सी में अगर हमें इनपुट कराना है तो उसके लिए हमें एम्परसेंट यूज करना होगा, अगर आउटपुट लेना है तो उसके लिए हमें स्टार यूज करना होगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिंटेक्स हैं सी में जो लर्न करने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये लैंग्वेज आपकी सिंपल है तो यहाँ पे हमें सिंटेक्स के बजाय किस बारे में सोचना है, हमें अपने अप्रोच के बारे में सोचना है कि हमें सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, दूसरा है ओपन सोर्स। ये अभी मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशंस अलाउड है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। तो आप कोड लिख सकते हो, उसको किसी से भी शेयर कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट्स का जो मूवमेंट है वो इजी है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम कोड को आराम से मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्बेडेड प्रॉपर्टी, एम्बेडेड और एक्सटेंसिबल। तो ऐसे चांसेस हैं कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अच्छा परफॉर्म करें, मतलब उसके जो कुछ फंक्शंस हैं वो पाइथन के फंक्शन से अच्छा परफॉर्म करें, बट पाइथन जो है वो इन्वॉल्व करता है एडिंग द कोड्स इनटू द लैंग्वेज, जो कि कोर कोड पे होता है। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, हम कोड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे लैंग्वेजेस के भी, और उसको रन भी करा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम चाहें तो C++ के कोड को पाइथन में ऐड कर सकते हैं और फिर उसको रन करा सकते हैं। तो एम्बेड का क्या मतलब है कि हम एम्बेड कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के कोड्स को पाइथन में। ठीक है, तो इसलिए ये एम्बेडेड भी है और एक्सटेंसिबल भी है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड। लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन होता है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट में यूजफुल होता है। ठीक है, डिबगिंग में भी यूजफुल होता है। ठीक है, और डिबगिंग को सिंपल कर देता है। ह्यूज लाइब्रेरी, वही हेल्प्स यू टू ऑब्टेन सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम इजियर। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमें लाइब्रेरीज में इतने सारी लाइब्रेरीज हैं कि आराम से हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि रियल लाइफ, मतलब हम कोई भी चीज है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे एनीथिंग, कोई भी चीज है आपके सामने, वी ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे आपके सामने मोबाइल है तो मोबाइल इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये मोबाइल जो है, आपका मोबाइल है सिंगल, आपका सपोज आईफोन है, तो आईफोन आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लास होगी क्या, एक प्रॉपर आईफोन जिसमें सारे आईफोन्स आएंगे, आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 7, एक आईफोन 8, आईफोन 10X जो भी आ रहा है अभी लेटेस्ट, एक्स जो भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आईफोन इज अ क्लास, तो उसके कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम सिंगल एक फोन की बात करें तो दैट फोन इज एन ऑब्जेक्ट, और अगर मैं क्लास की बात करूं तो उसमें क्या आएंगे, जितने भी आपके फोन्स आ गए एप्पल के, वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। क्लास में हम एज अ होल ट्रीट करते हैं किसी चीज को, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है, एक सिंगल एंटिटी होती है उस क्लास की। क्लियर है ये चीज? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग है, यू कैन मॉडल अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू योर कोड एंड हैव सिक्योरिटी फॉर इट। ठीक है, such that access to it is restricted, which help you to replicate the real world scenario। तो हमने कोई भी कोड बनाया, हम उसको क्या करेंगे, सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड है, जब हम चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको ही एक्सेस देंगे। ठीक है, फॉर दैट सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी ये तो वही है। पाइथन इज इंटरप्रेट, जो अभी मैंने बताया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिगनर लैंग्वेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी फंक्शनल, आपकी सी जो है, सी लैंग्वेज है, और C++ है, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल है। ठीक है, जावा आपकी फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तीनों है। ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन।
पाइथन जो है आपकी वो फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। फंक्शनल का क्या मतलब है, हम फंक्शंस पे वर्क करते हैं, ब्लॉक ऑफ फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर का भी मतलब है फंक्शंस की तरह एक स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो पाइथन आपकी तीनों तरह से वर्क करते हैं, तीनों को सपोर्ट करती है, तीनों टाइप की प्रोग्रामिंग को। ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कैन बी कंपाइल टू बाइट कोड बाय बिल्डिंग अ लार्ज एप्लीकेशंस। बाइट कोड में भी इसको कंपाइल किया जा सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप एंड सपोर्ट्स डायनेमिक टाइप चेकिंग। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, डायनेमिक टाइप चेकिंग क्या होती है, डायनेमिक डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आगे हैं आपके करिकुलम में, ठीक है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी है, गार्बेज कलेक्शन भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस, कॉम, एक्टिव एक्स, कोबरा, जावा, किसी के साथ भी इसको इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो रही है पाइथन आजकल, गूगल बेटर सर्च रिजल्ट्स के लिए यूज करता है इसको, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स अपने क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस को कोड करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, पाइथन को। नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स जब खोलते होगे तो रिकमेंडेड फॉर यू करके आता है, उसमें कुछ कुछ वीडियोस रहेंगी और वो होती हैं, तो वो वाली जो प्रोग्रामिंग है वो नेटफ्लिक्स में दैट इज डन इन पाइथन। तो मशीन लर्निंग इज यूज्ड to cluster users based on their interest on shows and retain them for longer, ठीक है। तो कुछ दिन तक आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स जब आप खोलते हो तो आता है उसमें कि लास्ट वॉच जो है आपका, या जो आपके बेसिस पे जो जिस टाइप की मूवीज आप देखते हो उसके बेसिस पे आपका एक रिफाइन होके आता है कि आप ये चीजें और देख सकते हो, रिजल्ट में उसमें आता है, ठीक है। तो वहां पे भी पाइथन यूज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है वो यूज कर रही है आपका पाइथन, ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वर्क के लिए। बिट टॉरेंट भी यूज करता है पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफर करने के लिए। फ्लूइड भी यूज करता है क्या? हाँ, फ्लूइड आई डोंट नो, फ्लूइड तो मेरे को फेक टाइप का लगता है बिल्कुल, ठीक है। नासा कैलकुलेशंस के लिए यूज करता है, मतलब इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन कंप्यूटिंग के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए नासा में पाइथन यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, वेब टेस्टिंग, गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं पाइथन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में, बिग डेटा, आजकल बिग डेटा का बहुत स्कोप है, स्मार्ट डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। बिग डेटा भी इनफैक्ट अभी तो पुराना हो चुका है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका ये चल रहा है AWS। मैम हाँ जी, पाइथन एनाकोंडा को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज जब आप सर्च करोगे ना, मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, आप उसको क्रोम पे खोलना, ठीक है, ब्राउजर पे अपने खोलना, और फिर उसमें वो नीचे आपसे पूछेगा आपको किस चीज के लिए डाउनलोड करना है, आपके सिस्टम का स्पेसिफिकेशन क्या है, सारा चीज है उसमें, आप वो कर लेना, उसको वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है, लाइब्रेरीज जो है इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इंटरैक्टिव मोड है। इसमें पाइथन में ना आपके दो टाइप के मोड्स होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन, मतलब मैंने एक लाइन टाइप की, मैं एंटर प्रेस करूंगी, मुझे उस लाइन का आउटपुट मिल जाएगा, फिर मैं दूसरी लाइन टाइप करूंगी, फिर एंटर प्रेस करूंगी, फिर उस लाइन का आउटपुट मिल जाएगा। तो लाइन बाय लाइन उसमें क्या होता है, आउटपुट्स मिलते जाते हैं। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हम पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये बच्चे एग्जिट करके फिर आ रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या इंटरनेट में? नहीं, कुछ तब मोबाइल डेटा से करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। एक्सटेंडेबल है, ठीक है। लो लेवल मॉड्यूल्स को जो है ऐड कर सकते हैं हम इसमें पाइथन में। पोर्टेबल है, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड होता है ये डेटाबेस, जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। GUI अगेन योर जो इंटरफेस है इसका वो अच्छा है, इजी है, हम आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। स्क्रिप्टिंग, दो तरह के एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। ये मैं आपको शो करूँ क्या, देखो स्लाइडर ओपन करके एक बार,
मैं स्पाइडर ओपन करती हूँ एक बार आपको, तो आप लोगों को शो करती हूँ इंटरैक्टिव मोड भी और स्क्रिप्ट मोड भी। तो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड का मतलब आपको समझ में है। इंटरैक्टिव मोड क्या करता है, एग्जीक्यूशन अलाउ करेगा इंडिविजुअल स्टेटमेंट का इंस्टेंटियसली, ठीक है, मतलब शेल पे एक तरह से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। और जो आपका ये स्क्रिप्ट मोड होता है, ये प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम को एक या एक से ज़्यादा लाइंस लिख के फिर उसको सोर्स कोड पे रन कराने के, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका होता है एग्जीक्यूशन मोड्स। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। सी, यहाँ पे देखो आपको 3 विंडोज दिख रही हैं। ये आपका सोर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इट डजंट मैटर्स, मतलब ये हमको बता रहा है कि कहाँ पे मेरा स्टोर है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा एरिया जो है, ये आपका क्या है, स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम एज अ होल लिखेंगे और फिर उसका आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। ये वाला जो विंडो है राइट में कॉर्नर में रेक्टेंगुलर विंडो जिसके ऊपर कंसोल लिखा हुआ है, ये हमारा आउटपुट भी रिप्रेजेंट करता है और ये मेरा इंटरैक्टिव मोड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 5, मैं एंटर करूँगी, मुझे आउटपुट मिल गया 7, ठीक है। या मैं लिखती हूँ प्रिंट सौम्या, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने एंटर किया, तो मुझे, तो यहाँ पे क्या इंटरैक्टिव स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। तो इस इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, हमें लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन के बाद एक आउटपुट मिलता जाता है। बट वहीं यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, एंटर द नंबर एंड आई विल डबल इट, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा नहीं चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, ये मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसको मैं रन करूंगी यहाँ से, तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, देखो, एंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट। तो यहाँ पे मैंने सपोज 5 लिखा, तो 5 का डबल हो गया 10, ये मुझे आउटपुट मिल गया एंटर करने पर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये इंटरैक्टिव मोड होता है, या इसको हम कंसोल बोलते हैं, कंसोल हमारा आउटपुट देखने के लिए यूज भी होता है और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग क्या, सिंगल लाइन ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जो स्क्रिप्ट मोड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मोर देन 1 लाइन्स इसमें हम लिख सकते हैं और फिर उसको रन करा के प्रोग्राम को इसका आउटपुट देख सकते हैं। क्लियर है दोनों मोड्स में, एग्जीक्यूशन मोड्स में डिफरेंस? जनरली एक आपका पाइथन शेल करके आता है। अगर आप लोग पाइथन आईडी इंस्टॉल करोगे ना, सिंपल पाइथन आईडी, तो उसमें भी 2 चीजें होंगी आपकी, एक शेल होगा और दूसरा ये आपका आईडी होगा। तो दोनों पे ऐसा कर सकते हो। जो शेल होगा वो इंटरैक्टिव मोड में होता है, हाँ। या आइडल है, आइडल में भी ऐसे ही होता है। 2 टाइप के आपको मिलेंगे, एक आपका इंटरैक्टिव मोड मिलेगा और दूसरा स्क्रिप्टिंग मोड में मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? I guess that's all for today. अभी it's 10:29. मैम हाँ, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पाइथन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पाइथन प्रॉपर शुरू करेंगे। मैम just wanted to ask, like, what is the paper pattern of CBSE like? Question. It's Like which type of questions? देखो, इनिशियली जो पाइथन के जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो जो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, उसमें से ऐसे आ सकते हैं कि क्रिएटर कौन था उसका, किस ईयर में वो रिलीज हुई, क्या हम C++ को एम्बेड कर सकते हैं। ओवरऑल आई एम टॉकिंग ओवरऑल आपके इसमें आपके प्रोग्रामिंग्स भी आती हैं, आपका फ्लो चार्ट बनाने को भी आता है, एल्गोस लिखने को भी आती हैं, कोड भी लिखने को आता है। कभी कभी पेपर ऐसा आ जाता है कि जिसमें सिर्फ पाइथन के कोड्स ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि आप ये सोचो कि बस हम थ्योरी पढ़ के चले जाएं और मेरा पेपर क्लियर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैम इन थ्योरीज लाइक हाउ मेनी मार्क्स मैक्सिमम इट कुड बी देयर? देखो, इन जनरल द रेशियो विल बी 40 and 60, है ना। 40 की थ्योरी आएगी तो 60 की प्रोग्रामिंग, या कभी कभी उसका उल्टा, लेकिन डिपेंड्स कि पेपर कैसा सेट हो रहा है। तो वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि 70% प्रोग्रामिंग आ जाए, है ना। तो अगर सिर्फ थ्योरी का कोई मतलब थ्योरी तो ऑब्वियसली आपको पढ़नी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि 70% थ्योरी आ जाए।
तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बाकी क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर सकती हूँ, प्रीवियस Yes, ईयर ma'am. Can क्वेश्चन you share पेपर्स और some? सैम्पल पेपर्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगी आप Yes, ma'am, लोगों को। please. ठीक है, वो मैं सीबीएसई के जो पेपर्स होते हैं ना वो मैं Because शेयर I'm कर दूंगी। unfamiliar with the way of this, व्हाट? like way of the pattern and all. हाँ तो नो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने 10th तक का एग्जाम दिया, अगर सीएस नहीं भी लिया है तो भी आपने बाकी सब्जेक्ट्स तो पेपर तो दिए ही है ना, तो पैटर्न तो Ma'am, आपको पता ही है कि उसमें कैसे आते हैं क्वेश्चंस। आपको ma'am, in मल्टीपल चॉइस ICC मिलेंगे, it is फिर ऐसे like मिलेंगे। it is a particularly fixed 60 program and 40 theory, हम्म and in 40 theory 20 marks actual theory and 20 mark like algorithms and output based questions. हम्म। But here I don't know, right? So it is not fixed. एक्चुअली देखो फिक्स तो किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है ना कि अगर मैंने बोला कि मैं 25 का ही तुमको थ्योरी दूंगी और बाकी का मैं तुमको प्रैक्टिक वो प्रोग्रामिंग दूंगी, तो कोई फिक्स नहीं। कभी कभी वो चीज ऊपर नीचे हो जाती है, Okay, ma'am. तो लेकिन प्रोग्रामिंग आती है, दैट आई विल से। क्योंकि जो That पेपर्स मैंने देखे हैं, अगर मैंने 4 पेपर्स देखे हैं तो उसमें से 3 पेपर में ऐसा है कि प्रोग्रामिंग अच्छी पूछी गई है। okay, ma'am. Programming is good and Python it is good. मैम डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन आवर एग्जाम इज स्टार्टेड? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। पार्डन? मैम डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन आवर एग्जाम इज स्टार्टेड? No, I don't have any idea about your school. I'll ask your Until mentors. which chapter it is Uh, coming? Actually, I am not aware because actually the thing is I don't know. Actually, देखो मेरे पास जो syllabus है, I have downloaded the syllabus from the CBSE website, जो आपका syllabus है, plus the deleted part भी CS में कुछ ऐसा major deletion नहीं किया Yes, गया ma'am. It है। is not there. ठीक है, बहुत ज्यादा डिलीशन नहीं है, वो थोड़े थोड़े पार्ट्स ही डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो जो भी है, और बात ये है कि ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, तो यू हैव टू स्टडी दोज थिंग्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ये कहो कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो चीज नहीं है। जैसे पाइथन है, पाइथन में आपको कैरेक्टर सेट क्या होता है ये पता होना ही चाहिए, वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता होना ही चाहिए, इंडेंटेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप आगे कोडिंग में बढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप वो चीज पढ़ रहे हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स, व्हाट राइट 5 और 10 कीवर्ड्स ऑफ पाइथन, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो उसको आप ये भी नहीं बोलोगे कि वो थ्योरी है, उसको आप ये भी नहीं बोलोगे कि वो कोडिंग है। हाँ ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप एक सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट कीजिए। Okay. You can ask this to your mentor. Who is this? Rajat. Okay, you can ask this to your mentor because recording is on, so she'll tell you that how can you get the recording. Okay. Sorting was also removed, right? Sorting नहीं, वो simple आपकी algorithms में जो है, I guess वही है जो remove हुई है। No, ma'am. Bubble sort and insertion sort is removed. Removed है? चलो अच्छा है, फिर आप ही लोगों के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। Ma'am, but it is good. हाँ अच्छा है, उसका concept अच्छा है। Sometimes it can help in future programming, like next year once. Yes. So okay, bye for now. Thank you, ma'am. Let's meet on next Monday. ठीक है, we'll start from Python, and please I request you all to at least install the Spider IDE or any Python IDE on your computer and start practicing small programs. Okay, it is very easy. You can just add 2 numbers, subtract 2 numbers, simple programming you can do in that. Okay, I'll send you the link. Okay, bye. आवाज आ रही है, माइक खराब है। हेलो आ रही है आवाज आपकी। ओके Okay, ma'am, I'm ending the meeting now. Leaving the meeting. Okay.